हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 10 में जो बिहार बोर्ड स्पेशल है उसमें क्वेश्चन नंबर 74 से हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 74 इज the refractive index of the material of a prism is √2। एक प्रिज्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। That means 1.41 and its refractive angle is 30 degree and its refractive angle is 30 degree. One of the refractive side of the prism is made a mirror. The refractive index of material of prism is √2 and its refractive angle is 30 degree. One of the refracting surface, let the surface of the prism is made a mirror। एक मिरर की तरह इसको बना दिया गया सिल्वर्ड करके। A beam of monochromatic light entering the prism from the other face retrace its path। A beam of monochromatic light, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face retrace its path। तो रीट्रेस कब करेगी? जब ये बिल्कुल 90 डिग्री बना के जाएगी, ठीक है। तो वो सेम पाथ पे वो रीट्रेस कर रही है। तो ये जो नॉर्मल हुआ तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ a beam of monochromatic light entering the prism from the other face retrace its path after reflection from mirror surface। The angle of incidence on prism is, now you have to find that what is the value of angle of incidence। So you see in the question and you know from the Snell's law, that sin I by sin R is equal to mu2 by mu1। Simply the light starts to move from rare media and the media first is air, because the light starts to move in from air and enter in the material of the prism। So mu2 is equal to mu-g if the prism is made by glass, or since its refractive index is under √2, so that is other than glass। So sin I, you have to find the sin I, and what is the value of sin R? Now you can calculate that the sum of angles of a triangle is 180, so it is 30 and it is 90, so 120 degree, and the rest angle is 60 degree. The rest angle is 60 degree, and already you know that the normal forms angle of 90 degree from the surface, so it is 60, so angle of refraction is equal to 30 degree। So angle of refraction is equal to 30 degree, 30 sin 30, and mu2 is equal to √2 बाई mu1 इज इक्वल टू एयर का, ये mu2 क्या है, mu-g, और ये mu-a, तो ये 1। सो वी फाइंड दैट sin I इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30। साइन 30 इधर आ गया, तो यहाँ पे sin I इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। सो द इक्वेशन इज sin I इज इक्वल टू 1/√2 by 2। So sin I and 1/√2 is the value of sin 45 degree, sin cancel, I is equal to 45 degree। That means the angle of incidence is 45 degree। Now we consider about the next question 75। The question number 75 is, when a beam of light is used to determine the position of an object,
जब ऐसे बीम का एक ऐसे बीम रे ऑफ लाइट का यूज करते हैं जिसका यूज जो है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्लियर डिटरमाइन करने में हो, तो द मैक्सिमम एक्यूरेसी इज अचीव्ड इफ द लाइट इज, तो इसके लिए आप इसको याद कर लीजिए ऑफ शॉर्टर लैम्डा, यानी द रे ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो वो रे ऑफ लाइट या वो बीम ऑफ लाइट जिसका जो है वेवलेंथ जो है वो जितना छोटा होगा वो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी देगा, ठीक है। तो ऑफ शॉर्टर लैम्डा, तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए आप किसी बीम ऑफ लाइट का यूज करते हैं, तो मैक्सिमम एक्यूरेसी उसी का होगा जिसका लैम्डा यानी वेवलेंथ जितना छोटा हो। 76 नंबर क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडिया म्यू इक्वल टू 1.5 इज। सो velocity mu is equal to velocity of light in a vacuum and velocity of light in media. So mu is equal to 1.5, that means 3/2. So here C naught is 3 × 10⁻10 centimeter per second. Then Cm is equal to 3 2 = 6 and 3 will be cancelled, 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीडिया जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है उसमें लाइट जो है वो 2 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, ठीक है। बिकॉज म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडिया इज टू बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडिया। That the velocity of light in the vacuum is 3 × 10⁸ centimeter per second and the refractive index of the media is given 3/2. So we have to find the value of velocity of light in the media, and by the way we get that the velocity of light in media is equal to 2 × 10⁻10 centimeter per second, that means 2 × 10⁸ meter per second, that means 2 × 10⁵ kilometer per second. That means light will move in the media by velocity 2 lakhs kilometer per second. So in the next question 77, which of the following is not essential for the formation of a pure spectrum? Which of the following is not essential, that means which is not must required for the formation of pure spectrum? So parallel beam of light, narrow beam of light, screen, prism in the minimum deviation। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट या नैरो बीम ऑफ लाइट भेजिए, बनेगा प्रिज्म से बनेगा, कोई भी हो, और स्क्रीन की इसकी आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट मस्ट रिक्वायर्ड दैट द स्पेक्ट्रम विल फाउंड एट दैट स्क्रीन। आप देखते हैं कि स्पेक्ट्रम तो ऐसे ही जब रेनबो बनता है आकाश में, इंद्रधनुष जब बनता है वर्षा के समय में, तो वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होता, वो बिना स्क्रीन का बनता है, और वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का जो है वो अरे कौन क्वेश्चन था, तो स्पेक्ट्रम ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्पेक्ट्रम? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो या नैरो बीम ऑफ लाइट हो या प्रिज्म हो, इससे बनेगा, बस स्क्रीन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना स्क्रीन का हो सकता है। नाउ इन द क्वेश्चन 78, ए सर्टेन फार साइटेड person cannot see object closer to the eye than 100 centimeter. The power of the lens which will enable him to read at a distance of 25 cm will be. Now we repeat the question again. A certain far-sighted person. Far-sighted person means, first of all, that means the person which is able to visit clearly of the far situated objects but not able to the visit clearly near situated objects. That means the far sighted person cannot see object closer to the eye than 100 centimeter. That means x is equal to 100 cm and we can write is minus 100 cm.
यानी ये 100 सेंटीमीटर से कम के ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये फार साइटेड है, यानी फार का ऑब्जेक्ट ही क्लियर देखता है 100 cm और उससे आगे अच्छा देखता है। 100 cm से यानी 1 मीटर के पहले उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो अगर उसे 25 सेंटीमीटर दूरी के किसी ऑब्जेक्ट को रीड करना हो, the power of the lens which will enable him to read at a distance of 25 सेंटीमीटर will be, तो उस लेंस का पावर क्या होगा, उस चश्मे का पावर क्या होगा कि वह 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को पढ़ ले। तो सबसे पहले फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, एंड आप जानते हैं कि फार साइटेड पर्सन के पास क्या होता है, नियर पॉइंट होता है। तो इसका डायरेक्ट होता है एक्स डी बाई एक्स माइनस डी इक्वल टू एफ। तो आप डायरेक्ट अगर ये फार्मूला याद है तो ठीक है, इससे फोकल लेंथ करके पता करके उससे आप उसका पावर पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं 1/v। इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो इमेज 100 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो 100 सेंटीमीटर पर देख रहा है और उसके आगे भी देख रहा है। तो 100 cm पर बने या 100 cm के आगे कहीं भी बने तो 25 cm का ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन 100 cm से ज़्यादा डिस्टेंस पे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा और उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसलिए इट इज रिक्वायर्ड दैट द इमेज शुड मेड at the point from where the eye starts to visit clearly। तो ऑब्जेक्ट वहां होना चाहिए जहां से वो साफ साफ देखना शुरू करता है, बस जस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। दैट मीन्स द पर्सन स्टार्ट्स टू विजिट क्लियरली फ्रॉम द डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। सो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर शुड मेड एट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। सो 1/f। तो and already we know that the object and the image both will be at the front side of the lens, so their sign will be negative, and the minus 1 by minus 100 plus 1/25 and 1/f, and LCM of the 100 and 25 will be 100, and minus 1 plus 4 इक्वल टू 1/f and f इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर। दैट इज पावर इक्वल टू 100/3/100 मीटर। सो पावर इक्वल टू 1/3 डायोप्टर। दैट मीन्स 0.33 डायोप्टर प्लस। तो आंसर ओहो, पावर इक्वल टू 1/f। तो मीटर में 100/3/100 तो 1/3। सो 1/f इक्वल टू 1/3, पावर इक्वल टू 3 डायोप्टर। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 79, which produces additional luminescence in a fluorescent tube। तो which produce additional luminescence of a fluorescent tube। फ्लोरेसेंट ट्यूब का मतलब होता है, पहले फ्लोरेसेंस वर्ड जो है उसका मतलब क्या है कि कहीं भी अगर फास्फोरस या जो है या फ्लोरीन अंधेरे में रखते हैं तो उससे एक प्रकार का जो है लाइट दिखता है, उसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसके लिए आप रट लेंगे क्या, तो अल्ट्रा वायलेट रेज which produces additional luminescence in a fluorescent tube। Now in the question number 80 is far point of a mypic eye is 40 cm। तो mypic eye में far point f इक्वल टू -x, यानी ये आप जानते हैं कि f इक्वल टू थ्योरी में आपको काफ़ी क्लियर इसको डिटेल में बताया गया। तो f इक्वल टू -x जो है क्या, तो जब भी मायोपियन आई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए माइनस चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव होगा, कॉन्केव लेंस से उसका होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर ये f इक्वल टू -x मान लो आपको पता नहीं है तो डायरेक्ट आप लेंस फार्मूला का यूज करके भी पता कर सकते हो। फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई इज 40 cm। एक मायोपिक आई है शॉर्ट साइडनेस वाला, वो उसका फार पॉइंट 40 cm है, यानी वो 40 cm तक ही क्लियर देख पाता है। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस वेयर ए मायोपियन आई
विजिट क्लियरली कोल्ड दैट्स फार पॉइंट, तो वो अधिक से अधिक 40 सेंटीमीटर ही साफ साफ देख पाता है, उसके बाद उसको साफ दिखाई नहीं देता है। तो उसको कैसा चश्मा चाहिए, तो उसको -40 सेंटीमीटर का कॉन्केव लेंस चाहिए और उसको डायोप्टर में चेंज करके पावर लिख दो और डॉक्टर बन जाओ, है ना। तो उसमें क्या करना है, तो अगर ये आपको फार्मूला पता नहीं है कि वहाँ क्या करेंगे, तो उसके लिए आप डायरेक्ट लेंस फार्मूला का यूज कर सकते हो, 1/v - 1/u = 1/f। यानी वो क्या करता है, मैक्सिमम 40 तक देखता है, ठीक है, मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर तक देखता है। उसको कहाँ का देखना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, उसको ऐसा चश्मा चाहिए कि भाई 40 सेंटीमीटर तो क्या, 40 सेंटीमीटर से लेकर 40 कोस तक उसको दिखाई दे साफ साफ, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उसका जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो इन्फिनिटी चाहिए। इन्फिनिटी मतलब उसके नेत्र से अधिक दूरी पर कोई भी वस्तु हो, वो 1 मीटर पर हो, 10 मीटर पर हो, 1 किलोमीटर पर हो, 1000 किलोमीटर पर हो, तो उसको ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, 1/v इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो इमेज उसको 40 के अंदर कहीं बना देंगे तो दिखेगा, लेकिन 40 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम वो देखता है। और मान लो 25 से 40 देखता है, 25 से 40 देखता है, तो 25 से 40 देखता है, तो 25 to 40, तो इसके बीच में बनाएंगे तो इमेज लगेगा कि उसके बॉडी पे चढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा वो एक प्रेशर फील करेगा, लगेगा कि इमेज बहुत करीब उसके आ गया। अब हाथी को देखेगा और वो हाथी है 10 मीटर पर, तो उसको लगेगा कि अरे हाथी तो मेरे देह पे चढ़ गई, काफ़ी करीब आ गई, तो क्लियर तो दिखेगा, लेकिन उसको एक तरह का एक अलग से एक डिफेक्ट महसूस होगा। तो उसके लिए प्रयास ये करना चाहिए कि जो उसका फार पॉइंट है वहीं पे इमेज बन जाए तो बेहतर है। तो f = -x, तो अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो इसको फॉलो करेंगे, 1/v इमेज कहाँ बनना चाहिए, उसके फार पॉइंट पर। फार पॉइंट क्या है, 40, तो -40 -u कहाँ के ऑब्जेक्ट का, तो -∞ = 1/f। दैट मीन्स -1/40 -+ 1.0 1/f, f = -40 सेंटीमीटर, तो उसे -40 cm का लेंस चाहिए। तो उसका पावर क्या हो गया, तो p = तो सबसे पहले 40 को 100 में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 2/5 मीटर। तो p = 1/f, तो 1/f तो 1/2/5 माइनस में, ठीक है, तो -5/2 यानी -2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर का उसको चश्मा चाहिए। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 81, in the question number 81, two thin lenses of focal length 20 centimeter and 25 centimeter are placed in contact. The effective power of combination is, the effective power of combination is, तो combination का मतलब अगर कांटेक्ट में है तो उनका फार्मूला हो गया 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 ऐसे। और अगर दो हैं कुछ डिस्टेंस पे तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ, इन द क्वेश्चन नंबर 81, two thin lenses of focal length 20 cm and 25 cm are placed in contact. The effective power of combination is, two lenses f1 = 20 cm and f2 = 25 cm, ठीक है, are placed in contact। तो ये दोनों मिलकर एक लेंस की तरह काम करेंगे, उसका फोकल लेंथ f मान लेते हैं। लेट द टू लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ दियर इक्विवेलेंट लेंस इज f। देन फ्रॉम फार्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/fn, तो 1/f = 1/f1 20 + 1/f2 25
1 by f is equal to now LCM of 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा 20 25 जा 100. LCM is 100 25 ja plus 4 and the focal length is 100 by 9 centimeter. Now the power of the lens. So to determine its power, first of all we have to change its focal length into meter. So 100 by 9 is equal to 1 by 9 meter. And power is equal to 1 by f, that means 1 by 9, that means 9 diopter. The answer number B is correct. Now in the question number 82, light owns its color to its frequency. Light owns its color to its frequency. यानी फर्स्ट लाइट का कलर इसके फ्रिक्वेंसी के कारण है. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 83, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू इन ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 विल बी. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 83, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, तो म्यू इक्वल टू सी नॉट बाई सी एम. तो म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी and its value in glass mu 3/2. तो ये C ग्लास में CM मटेरियल CG मान लेते हैं, तो ये म्यू क्या हो जाएगा 3/2 एंड C/CG. तो ये CG यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी इक्वल टू 2/3C. ठीक है, 2/3C यानी ऑप्शन नंबर बी. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 84, the length of an astronomical telescope for normal adjustment. Normal adjustment means to focus for infinity, and when an astronomical telescope is to be focused for infinity, then objective forms real and smaller image at its focus, and the image distance of the objective is to be equal to its focal length, and the image of the objective works as object for the eyepiece, and now the eyepiece is to be so adjusted that the image works as object for the eyepiece and its light lies at its focus. That means the focus of the objective and the focus of the eyepiece is at the same point, so it forms a larger image at infinity. So we see that in the condition, this condition called normal adjustment, that means focus for infinity, because we relax to see in the condition when an astronomical telescope is to be focused for infinity, which called normal adjustment, then we feel relaxed to looking to visit an object. And if we focus an astronomical telescope for the least distance of distinct vision, then the image of the object is to be very near to almost 25 centimeter from your eye, so you feel not relaxed. So it is required to नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, -FO/FE. सिर्फ FO/FE दिया है. अच्छा, इसका द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो लेंथ के लिए FO + FE हो जाएगा. FO यहाँ से और यहाँ से FE, क्योंकि OE = FO + FE. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 85, the absolute refractive indices of water and glass are water 1.3 and glass are 1.5 respectively. The refractive index of water with respect to glass, तो with respect to जिसके साथ है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा. और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये W वापर है. विथ रेस्पेक्ट टू जिसके साथ वो नीचे, और जो नीचे वो
जो ऊपर वो दाएं और जो नीचे वो बाएं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो व्हाट विल बी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.3 1.5 इक्वल टू 13/50। तो ऑप्शन नंबर ए 86 नंबर क्वेश्चन। इफ ए बीम ऑफ लाइट passes from air to glass, the speed of light, when a beam of light passes from rare to denser media, then its wavelength decreases। wavelength, अच्छा ये पूछ क्या रहा है? ए बीम ऑफ लाइट, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस from rare to denser media, then its wavelength decreases, and due to decreasing its wavelength, its velocity also decreases. Now in the question, a beam of light passes from air to glass. So air is rare media and glass is denser media. So wavelength of the light will decrease. So its velocity will also decrease. So option number A will be correct. Interference of light is the redistribution of which of the following physics quantities? Interference, are you understanding interference? When two monochromatic waves lies at a screen at the same time, then in the position it will be redistribution of light energy, and black and bright fringes are made called interference. So interference of light is the redistribution of which of the following physics quantities? तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड, इंटेंसिटी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें ये फ्रिंज बनता है, उसमें धारियां बनती हैं। ठीक है, इनका वाइड सबका इक्वल होता है। तो एक होता है बिल्कुल डार्क फ्रिंज, एक बिल्कुल ब्राइट, जैसे कि ये बल्ब चमकता है वैसे, फिर ये डार्क बिल्कुल ब्लैक, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क सेम वाइट का। इसका एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े हैं कि जब फेज डिफरेंस जो होगा वो λ/2 का जो है इवन मल्टीपल होगा तो ब्राइट बनेगा। ठीक है, फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई का जो है इवन मल्टीपल होगा, यानी फेज डिफरेंस क्या होगा? फाई किसका? तो 2n पाई होगा प्लस माइनस, तो ब्राइट बनेगा। और फाई क्या होगा? 2n + 1 होगा, पाई प्लस माइनस, तो ये डार्क बनेगा। और यदि पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये λ/2 का क्या होगा? इवन मल्टीपल होगा ब्राइट, और ये λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये ब्राइट का है और ये भी ब्राइट का। तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। तो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग 18 ठीक है 87 तो वो था 88, कोई छूट गया क्या? नहीं छूटा, चलिए। इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेस, if the amplitude ratio of two sources producing interference 3/5, ठीक है, the ratio of intensities at the maxima and the minima is, at the maxima as the minima is, so we know that intensity max is to be a square of sum of एम्पलीट्यूड्स, तो a + b का स्क्वायर, और ये I मिनिमा जो है वो a - b का होल स्क्वायर, अगर इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस 3/5।